بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ زوم پر پڑھائی جانے والی کلاسوں کو ہم محفوظ کر کے ویڈیوز کو مفید بنانے کے لیے انہیں مختلف چینلز پر اور مختلف پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تجحر المفاصل یا وجع المفاصل، جوڑوں کا درد، گینٹھیا۔ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کا سبب معلوم کریں کہ ایک انسان ٹھیک پیدا ہوا، اچھا بھلا اس نے زندگی کا ایک حصہ صحت مندانہ انداز میں گزارا، اس کے بعد اس کے جوڑوں میں، اس کے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے اسے ہم مختلف درجات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ جو یہ چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، نقرس کہتے ہیں اسے، اور جو بڑے جوڑوں میں درد ہوتا ہے جیسے یہ کلائی میں ہو گیا، کوہنی میں ہو گیا، گھٹنوں میں، گٹوں میں ہو گیا، انہیں عمومی طور پر گینٹھیا کا نام دیا جاتا ہے۔ گٹھیا، گینٹھیا، یہ ساری ایک ہی چیز کی علامت ہیں۔ دیکھیں، درد تین قسم کے ہوں۔ ایک درد وہ ہوگا کہ بیٹھنے سے بھی اس میں فرق نہیں پڑے گا، لیٹے ہوئے بھی درد کرے گا، چلتے ہوئے سکون ملے گا، جب ٹھنڈ ہو جائے رات کے وقت میں زیادہ درد کرتا ہے۔ ایسے جوڑ جو ہوتے ہیں ان میں حرکت میں کوئی خاص درد نہیں ہوتا، لیکن جب بیٹھ جائیں، ٹھنڈ ہو جائے یا موسم سرد ہو جائے، برسات ہو جائے، وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیں، تب زیادہ جوڑ درد کرتے ہیں۔ اسے ہم اعصابی کہتے ہیں۔ ایک جوڑ درد وہ ہے کہ جس میں اکڑاؤ پیدا ہو جائے، ہاتھوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے، یہ جوڑ مڑ جائیں، یہ رگیں کھنچ جائیں، یہ گوڑے گٹے جو ہیں ان میں ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جائے اور انہیں سیدھا کرنے سے مریض کی جان جائے، اکڑ جاتے ہیں، لکڑا جاتے ہیں۔ اسے ہم عضلاتی کہتے ہیں، عضلاتی اعصابی کہتے ہیں۔ تیسرا درد وہ ہوتا ہے، وہ بیٹھنے سے ہوتا ہے نہ لیٹنے سے ہوتا ہے، لیکن جب حرکت کرے تو تب ہوتا ہے۔ ان میں ہلکی سی سوج ہوتی ہے۔ اب یہ تین قسم کے درد ہو گئے۔ اعصابی درد ہے، وہ حرکت کرنے سے اس میں سکون ملتا ہے، اس میں اعصابی رطوبات زیادہ جمع ہو جاتی ہیں، جب وہ خشک ہو جائے، انہیں گرمی پہنچے تو انسان کو راحت آتی ہے۔ اس کا علاج عضلاتی کریں، غدی کریں۔ اس کے بعد دوسرا جو مرض ہے وہ ہے چلنے سے یا کپڑا لگنے سے، گرمی سے درد ہوتا ہے، جوڑ سوج جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، کپڑا، ہاتھ تو درکنار، کپڑا لگنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو مکھی تک بیٹھنے سے مریض چیخ اٹھتا ہے۔ یہ غدی مرض ہوتا ہے، اس میں سوج ہوتی ہے اور سرخی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے جوڑ درد کے لیے حب شفا جو ہوتی ہے مثلا، یا کوئی بھی ایسی چیز سے کہ جو بلڈ پریشر کو لو کر دے اور اس کو غدی جو مواد ہے یعنی جو صفرا رکا ہوا ہے غیر طبی طور پر، اسے خارج کر دے تو وہ اسے راحت پہنچاتی ہے۔ جیسے اسرول ہے اور سرنجا شیری ہے اور دھنیا ہے، سندل ہے، یہ چیز سے فائدہ ہوتی ہے۔ جن چیزوں میں ایسی سرخی آ جائے اور التہاب پیدا ہو جائے، سوزش پیدا ہو جائے، کوئی بھی ہری چیز لے کر، جیسے دھنیا ہو گیا یا اٹ سٹ بوٹی ہے وہ ہو گئی، یا پھر کوئی بھی ہری چیز آپ لگا سکتے ہیں اس میں،
ठंडी चीज का लेप कर सकते हैं, आप ठंडे पानी से इसकी टकोर कर सकते हैं। गर्जे के ऐसी चीज आप उन्हें खिलाएं, या आसावी खार खिलाकर आप सुफरा को, फाजिल सुफरा को खारिज कर सकते हैं वगैरह। अब आते हैं जो ज्यादा परेशानी का सबब है कि जोड़ लकड़ा जाते हैं, पथरा जाते हैं, एक जगह में जुड़ जाते हैं, उन्हें सीधा नहीं किया जा सकता। अगर सीधा करते हैं तो जान निकलती है, और बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसे पत्थर बन जाते हैं। देखिए, जो जमना है वो उजलाती असाबी उसमें होता है। ये सौदा जम जाता है, ठंड की तहरीक होती है, ठंड किसी भी चीज को भी जमा देती है। लोग कहते हैं कि जोड़ दर्दों का कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि सही तरीके से इलाज हो सकता है। मुनासिब ग़िज़ाएं खाने से इलाज हो सकता है। हजारों लोगों का हमने खुद किया है। मसलन जो जिनके जोड़ अकड़ जाते हैं, पथरा जाते हैं, उनके लिए आप ऐसी चीजें दें जिनसे जिस्म में रतूबत बढ़ती है, गर्मी पैदा होती है, जैसे गुद्दी आसाबी हो गई, आसाबी गुद्दी हो गई, या ऐसा करे कि जिससे गर्मी बढ़े, जैसे उजलाती गुद्दी हो गई। देखें, पहले था कि ठंड, सबसे ज्यादा जो ठंड होती है वो उजलाती आसाबी तहरीक में होती है। अगर इस ठंड को हम गर्मी में तब्दील कर दें, मसलन एक चीज से जम गई है, अगर आप उसे सेक देंगे तो वो चीज नरमा जाएगी, पिघल जाएगी, उसके वजूद में लचक पैदा हो जाएगी। यही चीज से हमारे जोड़ हैं। अगर हम इन जोड़ों को मुनासिब मकदार में सेक दे दें, इन्हें हरारत दे दें, और जो सख्ती आ गई है उसे हम नरमी में तब्दील कर दें, तो जुड़े हुए जोड़ खुल सकते हैं। मसलन गुद्दी उजलाती आप दे सकते हैं, उजलाती गुद्दी दे सकते हैं। मसलन देखें, मैं आपको अपने तजर्बात बताता हूँ कि अगर जोड़ों में दर्द हो जाए, बिलखुसूस गोडों में दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो आँख होता है, जिसे हम मदार कहते हैं, इसका दूध लेता हूँ, और मसलन अगर 1 तोला या 10 ग्राम दूध है, तो उसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो मैं 50 ग्राम से 100 ग्राम तक रोगन अरंड मैं शामिल करता हूँ, और इससे बस ऐसे ही मिला के अच्छी तरीके से उसे मैं हिला लेता हूँ, तो वो दूध या रंग का तेल तैयार होता है। आप गर्म पानी करें, उसमें नमक डालें, जितना गर्म आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतने गर्म पानी को लेकर उन जोड़ों पर जो अकड़ गए हैं उनको पहले तो भाप दें। जब अच्छी तरीके से कुछ पसीना आना शुरू हो जाए और वो गर्म हो जाए, वो अकड़ाव कुछ कमजोर हो जाए, तो फिर वो जो पानी कुछ उसका टेम्परेचर कम हुआ है उससे आप लेकर कपड़ा उन जोड़ों पर रखें और वहां पर उसको धारना शुरू कर दें। बार बार गिराएं, बार बार, हत्ता कि जो खून की रुकावट हो गई है और रतूबात जम गई हैं उन्हें कुछ सेक पहुंचे। जब वो हो जाए, फिर या तो आप कोई गर्म चीज बांधे। ये दर्द जो है ना, बाज दफा मोच आ जाए, कोई चीज टूट जाए, जोड़ में कोई मरोड़ी लग जाए या बल आ जाए, कहीं से कोई पाँव फिसला उसमें वो बल आ गया, तो ये सारी चीजें उसमें काम करती हैं। तो हमारे एक दोस्त थे, वो उनका एक तरीका था कि ये जो मोम होता है ना, मोम मक्खी का ओरिजिनल मोम, इससे वो अच्छी तरीके से कूटता है, और बार बार कूट के उसकी फिर रोटी सी बनाकर कोई भी तेल मालिश करके ऊपर से वो मोम बांध देता है, तो उससे भी दर्द जो है ना वो निकल जाता है, उससे भी खत्म हो जाता है। खैर, जो मेरा अमल है मैं वो बताता हूँ जुड़े हुए जोड़ों के लिए।
देखें, जो उजलाती दर्द होगा वो पहले दाएं घुटने में होगा, सीधी तरफ होगा। और जो आसाबी होगा वो बाएं घुटने में पहले होगा, यानी उल्टी सीमत पे ये दर्द शुरू होता है। तो फिर आपने करना क्या है कि उस टकोर के बाद फिर आप मालिश करवाएं। वो जो तेल मैंने तैयार किया है उसका आक के दूध का और रोगन अरंड जो थे उसकी अच्छी तरीके से मालिश करें, या नीचे रगों को जहाँ ये ऐसी जो है ना गिरा से लग जाती है, गांठ से बन जाती है, उस पर खुसूसी तौर पर करें। और उसके ऊपर आप इसी आक का पत्ता बांध लें, इसे थोड़ा सा ना सेक दे लें ताकि ये तो कुछ इसमें लचक पैदा हो जाए। ये जो कच्चा पत्ता होता है ना टूट जल्दी जाता है, तो अगर इसमें सेक हो जाए तो ये इसमें फिर लचक पैदा हो जाती है, आप वो बांध लें। सुबह को उठकर आप उसे खोलें और खोलकर उसे साफ करें, और फिर अगर हो सके तो अजवाइन डालकर, नमक डालकर फिर उसे भाप दें और इस तेल की मालिश रखें। इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। दूसरा ये है कि मैंने जैसे बताया था गुद्दी उजलाती मुलय्यन में अक्सर इस्तेमाल करवाता हूँ, ये लगाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में भी करते हैं, मैं खाने में देता हूँ। अजवैन, बाबची, राई और गंधक बराबर वजन में मिलाकर इन्हें मुनासिब मिकदार में, क्योंकि जिसको तजाहुरुल मफासिल होता है, गैंठिया होता है, उसे कब्ज़ भी उमूमी तौर पर रहती है, क्योंकि खुश्की सोदावियत का गलबा होता है। तो इस सोदावियत को ख़त्म करने के लिए गुद्दी उजलाती या गुद्दी आसाबी, गुद्दी उजलाती, गुद्दी आसाबी, सब देखें, सबसे ठंडी तहरीक जो होती है वो उजलाती आसाबी होती है, और सबसे गर्म जो तहरीक होती है वो गुद्दी आसाबी होती है। एक हो गया। फिर मैं एक और तेल तैयार करता था, गालबन अंबिया हल्दी और सुर्ख फटकड़ी, और ये दो चीज से उसमें बुनियादी थी। इसे मैं तेल में पकाता था, इसे मैं तेल में पकाता था, और इसमें सूरजजान भी डाल लेता था। और थोड़ा सा जब ये मसलन छटाक छटाक अगर ये है तो मैं आधा किलो तेल लेकर उसमें पकाता था। मेरा तरीकाकार ये था कि मैं मछली वाले जो मछली तलते हैं ना, इनके पास जाता था। तलते तलते एक वक्त ऐसा आता है कि वो तेल इनके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, उससे ये वेस्ट कर देते हैं, उसे फारिग कर देते हैं, और उसे कूड़ कबाड़ वालों को बेचते हैं। यानी वो फारिग होता है, जैसे ना मोबाइल है, जब वो इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद उसे बेच देते हैं, ऐसे ये बेचते हैं। तो मैं वो तेल उनसे लेकर आता हूँ, उसे मैं अच्छी तरह से उबालता हूँ, जो उसमें पानी, कोई मछली, पकोड़े, बेसन के जो ज़र्रात होते हैं वो जल जाते, फिर मैं उसे साम लेता हूँ। फिर ये जो चीज़ें हैं जैसे सुर्ख फटकड़ी हो गई, आंबिया हल्दी हो गई, ये चीज़ से मैं उसमें शामिल करता हूँ। कच्ची भी मैं उसमें शामिल करके उसके ऊपर वो लगा लेता हूँ, लेकिन पका भी लेता हूँ। फिर इसकी मैं मालिश करने के लिए देता हूँ और बांधने के लिए देता हूँ। अगर चले वो आक का पत्ता ना भी मिले, लेकिन आक में जो है वो खार होता है, और खार किसी भी सख्त चीज को तोड़ने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। अगर वो ना मिले तो आप मोमी शाह पर भी बांध सकते हैं। ये आप ये कुछ चीज़ें में मेरा दर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मुख्तसर अंदाज में मैं आपको ये बात बयान कर दूं। देखें, आपने खामखा मनशियात आमेज दर्द रोकने वाली पेन किलर इस्तेमाल नहीं करनी। आपने मर्ज को देखना है, मरीज को देखना है, उससे कह दे कि मियाँ या तो तू सारी जिंदगी भाड़े पर लग जा, और या फिर ये है कि तू इलाज करवा ले, कुछ दिन तक ये आप बंद कर ले। अब देखें ना, जो आसाबी दर्द होता है ना, उसमें आप भंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें पोस्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो खसकास का वो डोडा होता है उसे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दर्द रोग हैं, या सुरंजा शीरी हैं, और इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो दर्द बैठने से हो, ठंड में हो, वो आसाबी है।
اور جو درد چلنے سے حرکت کرنے سے ہو اور اس میں اتنی شدت ہو کہ ہاتھ لگانے سے بھی مریض کی چیخ نکلے، یہ غدی ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ عضلاتی ہوتا ہے۔ تو آپ جیسا بھی مرض ہو اس کے مطابق، عضلاتی ہے تو اس سے آپ اتنی گرمی دیں اور تری دیں کہ وہ جو اکڑی ہوئی چیز ہے اس سے گریس مل جائے اور وہ اپنے سے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر رطوبت کثرت سے ہے تو آپ غدی اعصابی دے سکتے ہیں، غدی عضلاتی دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ یہ چیز دے سکتے ہیں۔ اور اگر غدی ہے تو اس کے لیے اعصابی عضلاتی دیں، اعصابی غدی دیں۔ اور جس چیز میں زیادہ التہاب ہوتا ہے، جیسے نلوں کا درد ہو گیا، ماہواری کا درد ہو گیا، اس میں یہ غدی اعصابی ہوتا ہے، یا پیشاب میں جلن ہو گئی اور چیخیں نکلنا، یہ غدی اعصابی ہوتا ہے، اس کے لیے اعصابی ادویات استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور شفا دیتا ہے، اور مریض کے لیے راحت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔